Welcome to the solid state. So we have this diagram. Actually, we have seen it here in the last lecture. That is solids, and we know it very well. The core concept of solids, solid is nothing but the unit cell. So in last lecture, what we have seen, unit cell is smallest repeating structure throughout the crystal lattice. It's called as a unit cell. That is called as a unit cell. So we know it very well. Unit cell. Furthermore, every solid, specifically when we are talking about crystalline solids, so crystalline solids has smallest structure called as a unit cell. And being the core concept of this chapter, we know it very well. We have mathematician Davis has calculated possibilities of the unit cell, and he found that there are mainly 7 types of unit cell. As well as if we consider the subtypes of the unit cell, we got total 14 types of unit cell. But being we know it very well, here in this chapter we are concerned with only cubic unit cell. Okay. So though there are many 7 types of unit cells, here in the chapter we are going to discuss a cubic unit cell, and we have seen cubic unit cell has 3 different types. That is, you can say simple cubic unit cell, body-centered cubic unit cell, and you can say face-centered cubic unit cell. So these are the 3 main types of cubic unit cell. So now, as I told you, as far as exam point of view is concerned, unit cell is a core concept of the chapter. And that's why. There are 3 unit cells. Once we understood first one, then rest of the 2 becomes very easy for us. So इसलिए हमने देखिए पहला जो है unit cell के अंदर का first type is nothing but the simple cubic unit cell, also called as primitive cubic unit cell, जिसका 3D diagram बोर्ड के ऊपर आपको दिखाई देता है. हमने ये देखा making of this unit cell. इस सेल का making किस तरीके से? We have seen that being this cube has 8 corners, 8 particles on the 8 corners of the cube. And it has 6 bases, it has 12 edges. That is the making. Now, point number 2 is nothing but the coordination number. We have seen that the coordination number of this unit cell is nothing but the 6. Simple cubic unit cell का coordination number 6 होता है. वो कैसे होता है हमने लास्ट में डिस्कस किया था. Clear with this? Now, afterwards we have seen that we have to discuss number of atoms present in this unit cell and the density of the unit cell. Number of atoms हमने discuss किया था कि being this is the primitive unit cell, or you can say simple cubic unit cell, particles are present on the corner. So see, this is the particle on the corner. This particle being it's present on the corner, it contributes in total 8 unit cell. ठीक है, ये एक unit cell है, उसके side में up, top, bottom, सब जगह unit cell होता है. और ये जो corner का particle है, ये 8 unit cell के अंदर contribute करता है खुद को. तो इसका contribution एक unit cell के अंदर होता है 1/8. So this particle, ये जो यहाँ पे piece दिखाई देता है, piece of this sphere, this is nothing but the 1/8 part. और ऐसे हर कॉर्नर पे देयर आर 8 कॉर्नर्स. जितने कॉर्नर पे पार्टिकल्स है वो सारे 1/8 पार्टिकल है स्फीयर का. तो 1/8 मल्टीप्लाई बाय 8 कॉर्नर करते तो इट बिकम्स 1. सो इसका मतलब ये है हर कॉर्नर पे 1/8 पार्टिकल प्रेजेंट है और सारे कॉर्नर के मिला के ये 1 एटम होता है, 1 पार्टिकल होता है. इन दैट सेंस इसे कहते हैं नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज 1 बिकॉज़ इट इज मेड अप ऑफ ओनली 1 एटम, ओनली 1 पार्टिकल. ओके, ये भी हमने देखा. So 3 point हो गए. Number 1, that is making of this unit cell. Number 2 is nothing but the coordination number, and number 3 is nothing but the making. Number of particles present in this unit cell, number of atoms present in this unit cell. Now the fourth topic, which is related with this simple cubic unit cell, is nothing but the density. जिसके लिए हमने 3D diagram draw किया. Coordination number जानने के लिए भी हमने 3D diagram draw किया. तभी उसी टॉपिक की तरफ चलते हैं जो हमें डिस्कस करना है mainly. So that is nothing but you can say density of this unit cell. ठीक है. जनरल फॉर्मूला हमने कल डिराइव किया था. ठीक है, शायद आपको याद आता होगा. अभी इसी के आधार पर ये एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे लिए उसके अंदर आता है. ठीक है, अब देखिए इस यूनिट सेल के अंदर we have to calculate relation between A and R as well as you can say we have to calculate the density. अब देखिए, अब जैसे मैंने बताया कि this is the edge length which is A. Being हमने ये भी देखा था, being is a simple cubic unit cell, उसका कंडीशन होता है A is equal to B is equal to C. Alpha is equal to beta is equal to gamma is equal to 90 degree. So this is the condition. This is the condition. Cube का ये condition है. A is equal to B is equal to C. A is the length, B is the breadth, and C is the height. So length, breadth, and height, which all are equal, and that's why it is called a cube. Alpha, beta, gamma is equal to 90 degree. तो कहीं भी आप पढ़ने का देखो 90 degree होता है. Clear? इसका मतलब क्या हुआ? सी पहला पॉइंट जो देखना है हमें कहता है जिसका से relation between A and R. A and R. Relation between A and R. A is nothing but the edge length, and R is nothing but the radius.
सो ये जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, इस सेल के अंदर का ए दैट इज एज लेंथ एंड रेडियस, उसका रिलेशन क्या है डिस्कस करना है। सी ये जो है दिस इज द स्फीयर, और ये स्फीयर का ये जो नथिंग बट द रेडियस, ये स्फीयर का रेडियस ये है। क्लियर? सो ये अभी हमने इसके लिए देखिए यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ किया था, उसका रफ डायग्राम वापस ड्रॉ करता हूं। दिस इज द फर्स्ट सर्कल, दिस इज द सेकंड, सॉरी स्फीयर है, देन यहाँ पर भी एक स्फीयर है, यहाँ पर भी एक स्फीयर है, लाइक, और इनके सेंटर हम कनेक्ट करते हैं तो ये इस तरीके से हमारा ये डायग्राम बनता है इससे। तो ये देखिए ना, ये सेंटर से लेकर यहाँ तक दिस इज रेडियस, और यहाँ से लेकर इधर तक ये इसका रेडियस है, और सारे पार्टिकल एक जैसे है, सारे स्फीयर्स एक जैसे है, तो ये रेडियस भी सेम है, ये रेडियस भी सेम होगा। ओके, तो उसी तरीके से यहाँ पर है, बट डिफरेंस बस इतना ही, 3D डायग्राम है, ये हमारा 2D डायग्राम है। क्लियर? सो नाउ दिस यू कैन से रेडियस, और ये ए मिलता है। तो पहला अगर बात करते हैं रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, सो ए और आर के बीच में क्या रिलेशन, द सिंपल डायग्राम से पता चलता है कि यहाँ पे भी आ रहे हैं, यहाँ पर भी आ रहे हैं, सो ए इज इक्वल टू ट्वाइस आर, और यहाँ पे भी देखते हैं दिस इज आर, दिस इज आर, ए इज इक्वल टू ट्वाइस आर, कहीं भी देखो being a is equal to b is equal to c, whatever is the length, same is the breadth, same is the height. So in that sense, a, so that's why a is a twice r. So by going through the diagram, we can show that a is equal to twice r. a is equal to twice r. ये पहला रिलेशन हम यहाँ पे प्रूव करते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में। लेवल दिस now we have to discuss a second topic called as density। दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, that is called as density। okay, so we have to discuss a density। density क्या और कितना, ये हमें वहां पे डिस्कस करना है। ठीक है, अब देखिए when we have to calculate the density का कल ही हमने एक फार्मूला डिस्कस किया था, कल ही हमने एक फार्मूला जो जनरल फार्मूला हमने डिस्कस किया वो है, लेकिन चलो हम लोग वापस आ जाते हैं। डेंसिटी का फार्मूला क्या है? सो डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, इस यूनिट सेल का डेंसिटी हमें निकालना है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो नॉर्मल जो फार्मूला है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अभी डेंसिटी जब हमें यूनिट सेल का निकालना है तो हम पढ़ेंगे डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। मास ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल की बात करते हैं, और हमने कल डिराइव किया था, दैट इज डेंसिटी इज इक्वल टू दैट इज m into n अपॉन वॉल्यूम a क्यूब into n, that is Avogadro's number। ये हमने लास्ट इसमें जनरल डेंसिटी का फार्मूला दिया गया था। तो हम इस तरीके से भी जा सकते हैं और हम इस फार्मूला से भी जा सकते हैं, कैसे भी आप जा सकते हो, दोनों फार्मूला दिया करके हम जा सकते हैं, इस फार्मूला से भी जाता है। सो नाउ हियर m रिप्रेजेंट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस पार्टिकल। यहाँ पर जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल के मॉलिक्यूलर मास m रिप्रेजेंट करता है। n रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जैसे कितने पार्टिकल्स है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय n। a क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये जो क्यूब है उसका वॉल्यूम, और Na is Avogadro's number। So hope so कि परसों जो हमने देखा था डेरिवेशन वो सबको याद आ रहा है। Density is equal to m into n upon a cube into Na, जिसके अंदर d represent the density of the unit cell, m represent the molecular mass of unit cell, n represents number of particles present in unit cell, a cube represent the volume of unit cell, and Na represents Avogadro's number। ये हम उसके अंदर डिस्कस करते हैं, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम दोनों में से कोई भी फार्मूला यूज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लोग इसी से चलते हैं, सिंपल तरीके से चलते हैं, इसकी हम लोग फिलहाल में हमें कोई जरूरत नहीं है उस हिसाब से। क्लियर? नाउ अब देखिए मास ऑफ यूनिट सेल, ये जो पार्टिकल का मास हम जानते हैं, दिस इज ओनली मेड अप ऑफ वन पार्टिकल, मतलब ये जो है एक ही पार्टिकल का बना हुआ है। यहाँ पे जो फार्मूला लिखा था यहाँ पे लिखता हूँ d इज इक्वल टू m into n अपॉन a क्यूब into Avogadro's number। ये हम देखते हैं। ठीक है, सो नाउ ये जो n है, दिस नंबर ऑफ पार्टिकल इज 1, नंबर ऑफ पार्टिकल इज 1। सो मास ऑफ सिंगल पार्टिकल, दिस इज मेड अप ऑफ ओनली वन पार्टिकल। हमने तीसरा पॉइंट देखा है, दिस यूनिट सेल इज मेड अप ऑफ ओनली वन पार्टिकल बिकॉज़ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ऑन द कॉर्नर्स, और हर कॉर्नर से 1/8 पार्टिकल आता है, और ऐसे कॉर्नर्स कितने 8, तो 8 into 1/8 is equal to 1, means this unit cell is made up of only one atom। So mass of only one atom, mass of only one particle। So मास ऑफ वन पार्टिकल, यहाँ पे एक ही पार्टिकल है ना, एक ही पार्टिकल है, एक पार्टिकल का हमें निकालना पड़ेगा। सो जो भी मास आएगा उस पार्टिकल का वो हमें लिखना पड़ेगा व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग डेंसिटी मास ऑफ सिंगल पार्टिकल। अब ये स्फीयर है, पार्टिकल स्फेरिकल है, तो स्फेरिकल पार्टिकल का मास या वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे? तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का एक जनरल फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का जनरल फॉर्मूला क्या है? 4/3 पाई r क्यूब इज अ जनरल फॉर्मूला, इज अ जनरल फॉर्मूला जिससे हम लोग वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालते हैं। क्लियर विद दिस? तो वॉल्यूम ऑफ एनी स्फीयर is given by the general formula 4/3 pi r cube।
दिस इज द फॉर्मूला जिससे हम लोग वॉल्यूम निकाल सकते हैं। अब देखिए वो क्यों निकाला हमने, हम जानते हैं इसके अंदर सिर्फ एक ही पार्टिकल का ये यूनिट सेल बना हुआ, एक ही पार्टिकल, और वो पार्टिकल स्फेरिकल, सो वॉल्यूम ऑफ दैट स्फीयर मस्ट बी 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये एक ही पार्टिकल का होने के कारण ये जो जनरल फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब, दिस इज नथिंग बट द वॉल्यूम ऑफ सिंगल स्फीयर, सिंगल स्फीयर का वॉल्यूम बन जाता है, ठीक है। देन ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट की बात करते हैं हम लोग, सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, हम वॉल्यूम ऑफ द क्यूब निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, जनरल फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ क्यूब, किसी भी क्यूब का फॉर्मूला वॉल्यूम क्या होगा, एल क्यूब, दैट इज यू कैन से एल क्यूब। अब यह एल मतलब लेंथ, ब्रेथ देन हाइट, यहाँ पे लेंथ ब्रेथ देन हाइट इज डिनोटेड बाय ए, सो दैट्स व्हाई एल क्यूब मतलब क्या आएगा, ए क्यूब आएगा, ए क्यूब आएगा, क्लियर, ए क्यूब आएगा। अभी देखिए ए का वैल्यू तो हम यहाँ पे जानते हैं, पहले निकाला हमने, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, ए इज ट्वाइस आर, सो यहाँ पे अगर पुट करते हैं तो इट विल बी ट्वाइस आर, और उस ब्रैकेट का क्या आएगा, क्यूब आएगा, ट्वाइस आर इनटू ब्रैकेट क्यूब आएगा, क्लियर। और ये अगर सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, 8 r cube, so we'll get the value 8 r cube, ये आ जाता है। So in that sense you can say volume of cube is given by general formula L cube, value of L is nothing but the A, that's why it becomes A cube, or we have calculated A here, so it becomes twice r cube, so the value finally got 8 r cube। now देखिए we are calculating the density, density calculate करने के लिए हमारे तरीका है जिससे हम लोग निकाल सकते हैं what is the density, how much space is required। अभी डायरेक्टली डेंसिटी निकालेंगे तो मास वहां पे यहाँ पे चाहिए, तो हमने वॉल्यूम निकाला, वॉल्यूम को हमें मास में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस वॉल्यूम को हमें मास में कन्वर्ट करना, वॉल्यूम और मास एक जैसा नहीं है, ओके। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला हमारा डेंसिटी का, डेंसिटी इज इक्वल टू m into n, a क्यूब into na, a क्यूब मतलब क्या है आपका वॉल्यूम है, सो वॉल्यूम ये a क्यूब जो इसका वैल्यू तो यहाँ पे निकाला हमने, दैट इज हम रख सकते हैं, एवरेज नंबर पे रख सकते हैं, ये n भी हमें पता है 1 है, लेकिन ये जो मॉलिक्यूलर मास है हमें पता नहीं, बिकॉज ये पार्टिकल कौन सा है, ये पार्टिकल सोडियम है, क्लोरीन है, हमें पता नहीं है, जनरल। अगर पार्टिकल पता होता तो उसका मास यहाँ पे पुट करके हम डेंसिटी निकाल सकते थे, बट हमें पार्टिकल पता नहीं, उस केस में हम क्या करेंगे, फॉर्मूला को जनरलाइज करते हैं, मतलब परसेंटेज में निकालते हैं कि हाउ मच स्पेस इज रिक्वायर्ड, हाउ मच स्पेस इज लेफ्ट एम्प्टी, ठीक है। सो डेंसिटी निकालना है तो वी नीड अ मॉलिक्यूलर मास। अगर हमें पर्टिकुलर सब्सटेंस दिया जाता है, कोई भी एटम यहाँ पे है, क्लोरीन, सोडियम, ऐसा कोई भी नाम बोला जाता है, तो वी नो द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस, वी कैन कैलकुलेट द डेंसिटी, बिकॉज़ बाकी सारे वैल्यूज हमारे पास आ जाते हैं, बट ये पार्टिकल पता नहीं, तो वी हैव टू मेक इट मोर जनरल, जनरलाइज करना है। तो हम इसे क्या करते हैं, थोड़ा ट्विस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा ये कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं परसेंटेज में। किस तरीके से देखिए, दिस यूनिट सेल इज मेड अप ऑफ ओनली वन पार्टिकल एंड दिस पार्टिकल इज स्फेरिकल, सो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज नथिंग बट 4/3 पाई। तो वॉल्यूम ऑफ सिंगल पार्टिकल दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ओके। और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ टोटल क्यूब का वॉल्यूम कितना है, 8 आर क्यूब। So volume of cube 8 r cube counts to be 100%। ये जो क्यूब है उसका वॉल्यूम अगर 100% मानते हैं तो वॉल्यूम एक्वायर्ड बाय द पार्टिकल, ये जो पार्टिकल के पीस दिखते हैं, ये पार्टिकल के पीसेस ने कितना वॉल्यूम एक्वायर किया, तो दैट इज नथिंग बट 4/3 पाई, 4/3 पाई आर क्यूब, ओके। ये है, सो एक्चुअल जो क्यूब है इसका वॉल्यूम है 8 r क्यूब, जिसे हमने 100% ऐसा माना। अभी इसके अंदर जो पार्टिकल दिखते हैं, ये पार्टिकल यहाँ पे प्रेजेंट है, दिस इज द एम्प्टी स्पेस। आपको देखते हैं कई सारे पार्टिकल बीच में एम्प्टी स्पेस है, स्फीयर्स है, तो हम स्फीयर जब अरेंज करते हैं लाइक दिस, इस तरीके से, तो यहाँ पे आपको एम्प्टी स्पेस दिखाई देता है, सी एम्प्टी स्पेस दिखाई देता है। सो स्फीयर्स किसी भी तरीके से अरेंज करो, उसके अंदर एम्प्टी स्पेस दिखाई देगा। सो इन दैट सेंस टोटल क्यूब का वॉल्यूम 8 r क्यूब है, जिसे हमने 100% माना। सो द वॉल्यूम एक्वायर्ड बाय द वन पार्टिकल इज 4/3 पाई r क्यूब काउंट्स टू बी x%। वो कितना है, x%, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करते लाइक दिस, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते लाइक दिस, इस तरीके से। तो हमें x% निकालना, तो x मल्टीप्लाई दिस वन, तो ये आएगा x% into 8 r क्यूब इज इक्वल टू 100% into 4/3, ये उल्टा करते हैं, 4/3 पाई r क्यूब into 100%, लेवल 10। सो अभी इसमें से ये 8 r क्यूब उस तरफ कैरी करते हैं, सो डिवाइड बाय होगा 8 r क्यूब, 8 r क्यूब होगा, लेवल 10। अभी इसके वैल्यू हम इसके अंदर हम पुट कर सकते हैं, यू कैन से 4/3 पाई r क्यूब into 1/8 r क्यूब into 100 डिवाइड बाय 1, ये हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये r तो चला जाएगा, r क्यूब है वो चला जाएगा, पाई का वैल्यू हम पुट कर सकते हैं,
पाई का वैल्यू दोनों भी है 21/7, वो वैल्यू पुट कर सकते हैं, 3.14 वैल्यू पुट कर सकते हैं हम लोग, 22/7 या 3.14 ये वैल्यू हम रख सकते हैं पाई का। तो पुट द वैल्यू ऑफ पाई एंड कैलकुलेट, ये सारा कैलकुलेट करेंगे तो दिस कम्स अराउंड 68%, अराउंड ना, मैं मोर एग्जैक्टली नहीं, मैंने कैलकुलेट नहीं किया, अराउंड 68%। so it may be a bit larger or it may be a bit false, but 68% अराउंड ये वैल्यू आ जाता है। देखिएगा इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ये जो आपको सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल दिखता है, इस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर एक ही पार्टिकल का वो बना हुआ है। Being is a simple cubic unit cell, particles are present only at the corner, and that's why corner का contribution होता है 1/8. So सारे मिलाएंगे तो it becomes you can say एक particle. So this unit cell is made up of only one particle. Being these are the spheres, when they are arranged, there are the empty spaces left in between. Empty space रहेगा जरूर. So इस यूनिट सेल के अंदर कितना स्पेस एक्वायर्ड है और कितना एम्प्टी रहा, ये हम कैलकुलेट करते हैं। एक्चुअली हमें डेंसिटी कैलकुलेट करना था, लेकिन डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए वी नीड अ मास ऑफ द पार्टिकल। जो भी पार्टिकल यहाँ पे उसका मास जरूरी है। अगर मास पता है तो डेंसिटी निकाल सकते हैं, बट मास पता नहीं, इसलिए हमने जनरल इसमें कन्वर्ट कर दिया कि व्हाट इज द एक्चुअली वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब एंड हाउ मच वॉल्यूम इज एक्चुअली ऑक्युपाइड बाय द पार्टिकल्स। सो इस तरीके से वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज गिवन बाय L cube A cube, that is A का वैल्यू हमने यहाँ पे निकाला था, 2R cube that is 8R cube आ जाता है। 8R cube is count to be 100%, ये 100% like that, ठीक है। Out of that इस ये सिर्फ एक ही पार्टिकल का बना हुआ है, तो स्पेस एक्वायर्ड बाय दैट पार्टिकल is 4/3 pi r cube, being this is spherical one, तो स्पेस एक्वायर्ड बाय that particle is 4/3 pi r cube, it counts to be x%, counts to be x%, है ना। तो ऐसा होता है कि हमारे घर में 2 रोटी है और उसमें से मैंने एक खाया, तो कितने परसेंट खाया, बिकॉज़ 50%, 2 को 100% मानते हैं, तो ये खाया तो 50% खा लिया हमने, तो 50% में कन्वर्ट कर दिया, है ना। सो टोटल क्यूब के अंदर कितना स्पेस है और उसमें से कितना एक्टिव पार्टिकल ने स्पेस एक्वायर कर दिया, दैट इज नथिंग बट यू कैन से स्पेस एक्वायर्ड। सो इस पार्टिकल अगर कोई भी सॉलिड इस तरीके से बनता है तो इसमें देखिए 68% स्पेस एक्वायर होता है, 100% से 68%, 2% ऐड भी कर देते तो 70% मानो, मैं तो जस्ट बता रहा हूँ, होता नहीं है लेकिन जस्ट बता रहा हूँ कि 70% मतलब 32% स्पेस इज एम्प्टी होता है। yes, इस कोई भी सॉलिड इस यूनिट सेल के साथ जब बनता है तो उसके अंदर 32% एम्प्टी स्पेस होता है और 68% स्पेस ही उसका एक्वायर होता है। So this happens with this unit cells, and that's why solid कौन से यूनिट सेल का बना हुआ है that matters a lot, that matters, उसका डेंसिटी मैटर करेगा, उसके अंदर कितना स्पेस एम्प्टी है वो मैटर करेगा, and that's why we are studying this chapter, that is this unit cells over here. So this is what we have unit cell. You are with us? होप सो सब लोगों को समझ में आ रहा है। हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं यूनिट सेल। हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि कोई भी सॉलिड जो होता है, every solid has a smallest geometrical structure, and that geometrical structure is nothing but the unit cell. Unit cell is the smallest repeating structure throughout the crystal lattice. Bravis stated that there are a possibility of having maximum 7 main types of unit cell, or including subtypes, we got 14 types of unit cell. Amongst that, we are going to discuss only one, that is cubic unit cell. और cubic unit cell के 3 टाइप है, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड। जो भी इस दुनिया में जितने सारे सॉलिड है उसमें से जो भी सॉलिड क्यूबिक पैटर्न से तैयार होते हैं उसके अंदर भी 3 टाइप आते हैं वापस, सिंपल, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड। तो उनके अंदर कितना स्पेस एक्चुअली पार्टिकल एक्वायर करते हैं और कितना स्पेस एक्चुअली उसके अंदर एम्प्टी रहता है, दैट मैटर्स लॉट। अभी देखिए ना, डेंसिटी मैटर करता है। जब घर बनाए जाते हैं, बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग बनाए जाते हैं, उसके स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, उसके अंदर कॉलम होते हैं, उसका स्लैब होता है, तो उस कॉलम के अंदर, स्लैब के अंदर कितना स्पेस भरा गया और कितना स्पेस एम्प्टी है। बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाना है और उसके कॉलम के अंदर और स्लैब के अंदर अगर एम्प्टीनेस रहता है, कहीं ना कहीं वो प्रॉपर्ली फिलअप नहीं होता, तो वो उतना स्ट्रेंथ नहीं झेल पाएगा। सो उतना लोड और उतना प्रेशर उसे अगर बेयर करना है तो वो परफेक्टली सॉलिड होना चाहिए। दैट इज द साइंस बिहाइंड दिस। और ये हर चीज में, हम हमारे टीथ की भी बात करते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमारे टीथ के अंदर भी होता है कि पोरोसिटी होती है टीथ के अंदर। कुछ लोग जो कैल्शियम डिफिशिएंट होते हैं, पोरोसिटी होती है। यहाँ पे भी आता है कि एक्चुअली हमारे टीथ के अंदर पार्टिकल किस तरीके से रखे हैं, कितना स्पेस उसके अंदर एक्वायर्ड है और कितना स्पेस कम है। हमारी बोन डेंसिटी होती है, बोन की भी डेंसिटी होती है, दैट बोन डेंसिटी उसके अंदर भी होता है, उसके अंदर ओस्टियोपोरोसिस नाम का डिसीज आता है, तो बोन डेंसिटी भी मैटर करता है, वो भी एक सॉलिड है। तो दुनिया में हर सॉलिड के अंदर ये पार्टिकल मैटर करते हैं। सॉलिड के अंदर कितना स्पेस एक्चुअली पार्टिकल ने एक्वायर किया और कितना स्पेस एम्प्टी, ये स्टडी करना जरूरी है, एंड दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस चैप्टर। क्लियर विद अस? तो उसमें से पहला यूनिट सेल देखा हमने, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर हमने 4 हेड्स देखे। नंबर 1, मेकिंग ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। नंबर 2, coordination number of simple cubic unit cell. Number 3, number of atoms present in simple cubic unit cell. And number 4 is density, मतलब how much space is required.
एक्चुअली डेंसिटी बोल रहा हूं मैंने, डेंसिटी कैलकुलेट किया नहीं है एक्चुअली, हाउ मच स्पेस इज एक्वायर्ड, हाउ मच स्पेस इज लेफ्ट एम्प्टी। सो हम बोल सकते हैं कि 68% स्पेस इज एक्वायर्ड बाय द पार्टिकल एंड 32% स्पेस इज लेफ्ट एम्प्टी। तो ये जो दिख रहा है दैट इज द फ्री स्पेस, एम्प्टी स्पेस व्हिच इज प्रेजेंट इन दिस सॉलिड। जो कोई भी वो सॉलिड है उस सॉलिड के अंदर उतना परसेंट स्पेस एम्प्टी है। क्लियर? सो दिस इज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अभी ये अगर आपको समझा हुआ है तो बाकी तो समझने में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी। क्लियर? सो लेट्स मूव ऑन टू सेकंड सेल दैट इज बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बीसीसी। Okay, so let's move to the BCC. Sorry, BCC. अभी इस BCC के बारे में हमें 4 heads डिस्कस करने हैं। 4 heads. Number 1 head, that is you can say making of this unit cell. Number 2, coordination number. Number 3, making coordination number. Then number of atoms or number of particles. And number 4, that is you can say density. मतलब how much space is acquired. Same heads. जो हमने एसएससी के बारे में देखा था वही हम यहाँ पे बीसीसी के बारे में डिस्कस करना है। क्लियर? सो अब देखिए वापस इसके डायग्राम देखते हैं हम लोग जो हमने लास्ट टाइम ड्रॉ किया था। So these are the corners and these corners represent the lattice points scientifically, or lattice points means the particles. So these are the particles. अभी इस यूनिट सेल का नाम है बीसीसी और ये बीसीसी किसका टाइप है? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का। क्यूबिक होने के कारण कंडीशन सेम रहेंगे। A must be equal to B must be equal to C, alpha must be equal to beta must be equal to gamma must be equal to 90 डिग्री। ये कंडीशन नहीं बदलेगा बिकॉज़ हम क्यूबिक तो डिस्कस कर रहे हैं, बाकी यूनिट सेल के टाइप डिस्कस करेंगे। Now being this is a BCC, body centered cubic unit cell, उसका एक पहला डायग्राम देखा था। इसमें there are 8 particles which are present on the 8 corners of the cube. ये जो क्यूब है उसके 8 कॉर्नर पे आपको 8 पार्टिकल्स दिखाई देता है। At the same time, one particle is present in the body of this cube. Okay, इस क्यूब के बॉडी में एक पार्टिकल दिखाई देता है। ये पार्टिकल एकदम बॉडी में सेंटर में। मैं बार-बार इस चैप्टर में कह रहा हूं कि हैव द इमेजिनेशन पावर। जितना ज्यादा आप लोग इमेजिन करेंगे उतना ज्यादा आपको ये अच्छी तरह टॉपिक समझ में आएगा, उतना ज्यादा आपको ये टॉपिक अच्छा समझेगा। अब इमेजिनेशन क्या है इसके अंदर देखिएगा कि होता क्या है, This is the front face, this is the back face और इस सेंटर में एकदम बॉडी ऑफ मतलब क्यूब के सेंटर में, क्यूब ऐसा है तो एकदम उसके सेंटर में यहाँ पे आपको दिखाई देता है like this particle. So that's why BCC. So इस स्ट्रक्चर के अंदर there are 8 particles which are present on the 8 corners of the cube. When we are discussing making में डिस्कस करते हैं। Being this is a simple cubic unit cell, condition has to be A must be equal to B must be equal to C, alpha is equal to beta is equal to gamma is equal to 90 degree. Point number 1. Point number 2. It has 8 corners and 8 particles are present on the 8 corners of the cube. Next point, whereas one particle which is present in the bulk of this cube, one particle which is present into the bulk of this cube, cube के bulk में present है, ये उसके अंदर का तीसरा पॉइंट है। That's all for the making में इतना है, बाकी उसके अंदर it has 6 spaces, it has 12 edges वगैरह वो सब उसके अंदर आ ही जाएगा। Clear with this? So that is what we get here. So ये इस तरीके से इसके अंदर आ जाता है। तो when we are talking about the making of this BCC, it has 8 corners, 8 particles. One particle is present in the bulk of this unit cell. Unit cell के bulk में center में वो present है. It has 6 spaces and 12 edges. That's all in the making. Next, we have to discuss coordination number and number of atoms present in this unit cell. ये दोनों हमें डिस्कस करना है। तो coordination number तो डायग्राम के साथ बहुत अच्छी तरह हमें समझ में आएगा, 3D डायग्राम के साथ। और when we are talking about number of atoms present in that, वो भी 3D डायग्राम के साथ हम लोग समझ में आता है। So अभी नंबर ऑफ एटम्स कोऑर्डिनेशन नंबर देखते हैं, फिर उसके बाद हम डेंसिटी के लिए मूव करेंगे। पहले नंबर ऑफ एटम्स डिस्कस करते हैं। नंबर ऑफ एटम्स देखिए, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ एटम्स, तो नंबर ऑफ एटम्स दो तरीके से आएंगे। नंबर 1 फ्रॉम कॉर्नर्स, पार्टिकल कहां का प्रेजेंट है, पार्टिकल कॉर्नर पे प्रेजेंट है और पार्टिकल बल्क में प्रेजेंट है। तो पहला फ्रॉम कॉर्नर्स, ऐसे कितने कॉर्नर्स है? देयर आर 8 कॉर्नर्स। ओके, सो देयर आर 8 कॉर्नर्स, यहां पे लिखता हूं 8 कॉर्नर्स इनटू, हम अच्छी तरह जानते हैं ये जो कॉर्नर का पार्टिकल उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8। सो 8 into 1/8 must be equal to
1. So there is only one particle present from the corner, but इसकी एक खासियत है, there is another particle which is present into the center. So second point आता है from center. When we are calculating the particles दो जगह है, corner पे center पे, तो from corner 8 into 1 by 8 is 1. From center में 1 है, that is 1, or that counts to be 1. The reason behind that, this is the particle which is present into the center of the cube. This is the particle which is present into the center of the cube. ये दूसरे किसी का पार्ट नहीं हो सकता, दूसरे किसी यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता. अब देखिएगा, हम डिस्कस करते हैं कि हम अब मान लो किसी फ्लैट में रहते, बिल्डिंग में, और हमारे फ्लैट के बाजू में दूसरे किसी का फ्लैट है, तो एक वॉल होता है जो दोनों के बीच में होता है, एक वॉल होता है जो उस फ्लैट में भी होता है और हमारे फ्लैट में भी होता है, वो कॉमन होता है दोनों फ्लैट के अंदर. जैसे ये पार्टिकल कॉर्नर पे है, 8 यूनिट सेल के अंदर वो कंट्रीब्यूट करता है. ये पार्टिकल सेंटर में, मतलब हमारे घर के बीच में अगर कोई चेयर रखी है तो सिर्फ हमारे फ्लैट के अंदर होती है, वो दूसरे किसी फ्लैट में नहीं जा सकती, सेंटर में रखी है. ये पार्टिकल इस यूनिट सेल के सेंटर में रखा है. ये पार्टिकल दूसरे किसी भी यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट नहीं करता, कभी नहीं करेगा, बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन द बल्क ऑफ दिस यूनिट सेल, सेंटर ऑफ दिस यूनिट सेल. सो ये सिर्फ इसी में कंट्रीब्यूट करेगा, वो पूरा का पूरा आएगा, वो पूरा का पूरा आएगा. सो कॉर्नर से सारे पार्टिकल मिला के 1 पार्टिकल बनता है, और सेंटर का 1 पार्टिकल, तो कुल मिला के इट हैज 2 एटम्स, और यू कैन से 2 पार्टिकल्स. So simple cubic unit cell was made up of only 1 particle, 1 atom, whereas body center cubic unit cell is made up of 2 atoms, one from the corner, one from the bulk, total 2 atoms. ये 2 atoms का बना हुआ है. We were talking about number of atoms. Clear? And let's move to the coordination number. Coordination number यहाँ पे आपको नहीं समझेगा, coordination number 3D डायग्राम के अंदर समझेंगे. Clear? अभी हमने 2 टॉपिक देखे, मेकिंग ऑफ दिस BCC, दूसरा देखा हमने नंबर ऑफ एटम्स. अभी इस BCC के अंदर नंबर ऑफ एटम्स 2 जगह से आते हैं, एक आता है कॉर्नर से और एक आता है सेंटर से. और कॉर्नर का लिखने का तरीका यही है, यहाँ पे 8 कॉर्नर्स हैं, तो 8 कॉर्नर्स मल्टीप्लाई बाय कॉर्नर का पार्टिकल होता है 1 by 8 कंट्रीब्यूशन, तो 8 into 1 by 8 is equal to 1. सो इतना हम लोगों को मिल जाता है. एंड बल्क क्या आता है 2 आइटम्स. तो एग्जाम में ऐसा लिखा जाता है, एग्जाम में इसके लिए आधा मार्क्स, इसके लिए आधा मार्क्स, कुल मिला के आपको 1 मार्क्स इसके लिए मिल सकता है. एग्जाम में अगर टॉपिक पूछेंगे हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन BCC, तो इसके लिए आधा मार्क्स, इसके लिए आधा मार्क्स, सिर्फ एक ही मार्क्स उसके लिए मिल सकता है. और कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए 1 मार्क्स होता है. इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, एक्चुअली हम 3D डायग्राम के अंदर काउंट करते हैं, मतलब डेंसिटी और कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों टॉपिक 3D डायग्राम में क्लियर हो जाएंगे. इसी का 3D डायग्राम BCC का. ओके, सो लेट्स मूव 3D डायग्राम. ये टॉपिक ध्यान रखिएगा. ठीक है, 3D डायग्राम कैसे निकालते हैं सिना, वापस एक बार. डायग्राम इस चैप्टर में जरूरी है, एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसलिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा. मैं बच्चों को अपील करूंगा कि भले अभी आप सिर्फ वॉच कर रहे हो, लेकिन आपको डायग्राम का प्रैक्टिस करना पड़ेगा. दिस डायग्राम विल बी आस्क्ड इन द एग्जाम. एग्जाम में डायग्राम पूछे जाएंगे, पूछे जाते हैं. क्लियर? देखिए, ये तो हमने क्यूब निकाला, जैसे पहले भी निकाला हमने, इस तरीके से क्यूब निकाला. अभी ये जो है, दिस इज द फ्रंट फेस. ये जो हमारा, ये हम लोग फ्रंट फेस की बात करते हैं. दिस इज द फ्रंट फेस. ये हमारा इस पार्टिकल का फ्रंट फेस है. ठीक है, फ्रंट फेस. ये इस पार्टिकल का सेंटर है, इस पार्टिकल सेंटर है, यहाँ पर सेंटर है, यहाँ पर भी हमारे सेंटर्स आते हैं. ठीक है. नाउ व्हेन वी हैव टू मेक अ 3D डायग्राम, तो पहले ये फ्रंट फेस कंसीडर किया जाएगा. और ये होता कैसे है, इसका हम अगर क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट देखते हैं तो देखिए, दिस इज फर्स्ट पार्टिकल, दिस इज सेकंड पार्टिकल, दिस इज फोर्थ पार्टिकल, थर्ड पार्टिकल एंड दिस इज फोर्थ पार्टिकल. ये 4 पार्टिकल्स हैं. इसके ऊपर यहाँ पे एक पार्टिकल होता है सेंटर में, नीचे के लेवल में 4 पार्टिकल है, इसके बीच में एक पार्टिकल है, और इनके ऊपर वापस 4 पार्टिकल है. अगर मैं ऐसा करता हूँ, देखिए ये यहाँ पे इरेज करता हूँ. ठीक है, अब देखिए, अब ये हो क्या रहा है, नीचे एक पार्टिकल, इसके ऊपर 4 पार्टिकल्स है, तो इनके पीछे है और एक पार्टिकल निकाल सकता हूँ इनके पीछे. ये देखिए, एक्चुअल में ये डायग्राम आपको ऐसा दिखता है, लाइक दिस. अभी देखिए, ये जो बाहर वाले पार्टिकल दिख रहे हैं वो नीचे के लेयर के 4 पार्टिकल है, उसके ऊपर ये एक पार्टिकल है, उसके ऊपर वापस 4 पार्टिकल है. तो नीचे के लेयर में 4 पार्टिकल्स, उसके सेंटर में एक पार्टिकल और उसके वापस 4 पार्टिकल, और इनके सेंटर अगर कनेक्ट करते हैं हम लोग, इनके सेंटर्स, तो देखिए ये वाला डायग्राम बनेगा आपका, ये वाला डायग्राम. अभी इसके पीछे का पार्टिकल यहाँ पर है, ये इसके पीछे का पार्टिकल, लाइक दिस इज द क्यूब. ये इस तरीके से. अभी इसके इस डायग्राम के अंदर
इसी डायग्राम के अंदर इस यूनिट सेल का बाहर का पार्ट अगर हम लोग ऐसे कट कर देते हैं, देखिए ऐसा कट करते हैं तो ये डायग्राम बनेगा, ये ठीक है। अब ये डायग्राम थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा आपको कि इसमें फ्रंट के दो पार्टिकल थे, ये दोनों यहाँ पे टच नहीं होते, दोनों के बीच में डिस्टेंस है लाइक दिस, ये वाला और ये पार्टिकल दोनों के बीच में डिस्टेंस है, और इनके ऊपर ये पार्टिकल है, तो दोनों में डिस्टेंस है। तो होता क्या है कि व्हाइल ड्राइंग दिस वन वी हैव टू ड्रॉ डायग्राम लाइक दिस वन, इस तरीके से हमें डायग्राम ड्रॉ करना पड़ता है। ये पार्टिकल यहाँ पे होगा, ये यहाँ पे होगा, सी दस यहाँ से है, ये आर्क है, यहाँ का आर्क रहेगा, ये रहेगा फ्रंट फेस, फ्रंट फेस, और इसके बीच में यहाँ पे ये बड़ा पार्टिकल रहेगा जो सेंटर में दिखता है, सेंटर का पार्टिकल यहाँ पे रहेगा जो इस बॉडी के अंदर इसके अंदर प्रेजेंट मिलता है, ठीक है। तो ये पार्टिकल देखिए इसी तरीके से पार्टिकल है, सो यू कैन सी दिस इज द पार्टिकल। उसी तरीके से इस स्पेस पे पार्टिकल दिखाई देंगे लाइक दिस, ये देखिए यहाँ पे केयर जरूर लेना है आपको, लाइक दिस। अब देखिए ये दो पार्टिकल जो, ये इस पार्टिकल का रेडियस है और ये इस पार्टिकल का रेडियस है, दोनों में डिस्टेंस है, दोनों में डिस्टेंस है, सो दिस स्पेस इज देयर ओवर, इसके अंदर ये स्पेस मिलता है आपको। और लाइक दिस, जैसे ये पार्टिकल कराएगा इस तरीके से जाएगा लाइक दिस, यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। इस पार्टिकल का यहाँ पे दिखाई देगा आपको, ठीक है। सो दिस इज डायग्राम, होप यू आर एबल टू इमेजिन 3D डायग्राम। जिस 3D डायग्राम के अंदर वी आर टॉकिंग अबाउट BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर क्या दिखता है जरा देखिए, these are the particles which are present on the corners, ये पार्टिकल सारे कॉर्नर के पार्टिकल, और ये जो सेंटर में दिख रहा है जो पार्टिकल इस तरीके से देखिए, ये वाला पार्टिकल इस तरीके से आ रहा है यहाँ, ये उसके बीच में दिखाई देता है, जो अभी जो दिखाया था मैंने कि नीचे के लेयर में 4 पार्टिकल्स हैं, ओके लाइक दिस, जो ये वाला पार्टिकल, ये यहाँ का पार्टिकल जो आपको दिखाई देता है यहाँ पे, और इसके नीचे का पार्टिकल दिखाई नहीं देगा, और इनके ऊपर एक पार्टिकल दिखता है जो यहाँ पे इस तरीके से, जो यहाँ पे दिखा है, और इनके ऊपर वापस 4 पार्टिकल्स आते हैं जो ये है, ये पार्टिकल्स है। सो ऑल दीज आर द स्फीयर्स। सो हर कॉर्नर पे जो दिखाई देता है आपको, कॉर्नर पे 1/8 पार्टिकल ऑफ स्फीयर है, हर कॉर्नर पे 1/8 पार्टिकल ऑफ स्फीयर है, और सेंटर में पूरा का पूरा एक पार्टिकल दिखाई देता है लाइक दिस वन, ये, और ये वापस यहाँ पे दिखाई देता है। सो इस तरीके का अरेंजमेंट है। नाउ सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं कि हाउ व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस यूनिट सेल। BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? कोऑर्डिनेशन नंबर इज आल्सो डिनोटेड बाय CN, CN stands for coordination number of BCC। कोऑर्डिनेशन नंबर का डेफिनेशन में लास्ट टाइम बताया, कोऑर्डिनेशन नंबर का डेफिनेशन क्या है? Consider any of the particle in this unit cell and just check it out with how many particle it is in contact with, कितने पार्टिकल के वो कांटेक्ट में है, that is nothing but you can say coordination number। तो अभी हम कॉर्नर का कंसीडर करेंगे तो शायद समझ में नहीं आएगा, हम सेंटर का कंसीडर करते हैं, ये वाला कंसीडर करते हैं। तो ये सेंटर वाला पार्टिकल कंसीडर करते हैं, तो देखिए इस डायरेक्टली इस कितने पार्टिकल के टच में है, तो ये कॉर्नर का पार्टिकल उसको टच हो रहा है, ये कॉर्नर का पार्टिकल टच हो रहा है, ये कॉर्नर का टच हो रहा है, ये कॉर्नर का टच हो रहा है। फ्रंट फेस के चारों पार्टिकल उस एटम के साथ टच करते हैं, उसके साथ टच करते हैं, और नीचे के पार्टिकल जो है वो भी उसके साथ टच करते हैं। सो इन दैट सेंस ये जो पार्टिकल देखा हमने ऊपर का, दिस पार्टिकल इज इन कांटेक्ट विद 4 इन बिलो लेयर एंड 4 इन अबव लेयर। So coordination number when we are talking about, so इसके ऊपर 4 particles, नीचे के ऊपर particle, total coordination number is 8। So in BCC cubic unit cell, the particle which is present at the center, is in contact with 8 particles here, all particles which are present on the corners। So BCC के अंदर the particle which is present in the bulk of this unit cell, center of unit cell, is in contact with other 8 unit cells, other 8 particles, and that's why its coordination number is 8। हमने simple cubic unit cell के अंदर देखा था, simple cubic unit cell has coordination number which is called as 6, है ना, because उसका particle 6 particle के टच में था। इसके अंदर की बात करते हैं, तो इसके अंदर का जो सेंटर का पार्टिकल है, वो सेंटर का पार्टिकल टोटल 8 पार्टिकल्स को टच करता है कांटेक्ट में। सो कोऑर्डिनेशन नंबर उसका 8 होता है। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर का डेफिनेशन क्या है? It is the number of particles or atoms with which any particular atom is in directly contact with, किसी भी यूनिट सेल के अंदर का कोई भी एक एटम
दूसरे कितने एटम के कांटेक्ट में है डायरेक्टली, कितने एटम को टच करता है, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर माना जाता है, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर माना। जैसे कि अब देखिए मैं ऐसा डायग्राम ड्रॉ करता हूं लाइक दिस, ये डायग्राम ड्रॉ करता हूं ये, तो इस डायग्राम में ये लीनियर डायग्राम है, इसके अंदर का ये पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल दो एटम को टच करता है, तो इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 2। दिस एटम इज इन कांटेक्ट विद टू एटम्स, दैट्स व्हाई इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2। इस एटम की बात करते हैं तो इट इज इन कांटेक्ट विद ओनली वन। और किसी भी लीनियर अरेंजमेंट में फर्स्ट एंड लास्ट पार्टिकल सिर्फ एक के कांटेक्ट में होता है और बीच के सारे पार्टिकल दो के कांटेक्ट में होते हैं लीनियर अरेंजमेंट में। और हम जब बीसीसी की बात करते हैं, बीसीसी में सेंट्रल का पार्टिकल टोटल 8 पार्टिकल के कांटेक्ट में है और इसलिए उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ एटम्स विद व्हिच एनी पर्टिकुलर एटम इज इन कांटेक्ट विद, कोई भी एक एटम। अभी इसकी बात करते हैं तो ये भी 8 के टच में होता है। ये प्रूव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है बिकॉज़ आपको बहुत इमेजिन करना पड़ेगा, इसलिए हमने सेंटर का कंसीडर किया। अब ये कंसीडर करते हैं तो ये भी किसी न किसी यूनिट सेल का सेंटर पॉइंट हो सकता है या फिर कॉर्नर पॉइंट हो सकता है, बट वो उतने यूनिट सेल के कांटेक्ट में होगा। क्लियर विद दिस? सो बीसीसी के बारे में 3 पॉइंट्स हमारे क्लियर हो गए। नंबर 1 मेकिंग, नंबर 2 कोऑर्डिनेशन नंबर, नंबर 3 नंबर ऑफ एटम्स। तो मेकिंग क्या था? इट हैज 8 पार्टिकल्स ऑन द 8 कॉर्नर्स। अभी देखिए मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूं सीखा हुआ टॉपिक, क्योंकि आपका लर्न होना चाहिए ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूं। दैट्स व्हाई आई एम रिपीटिंग द टॉपिक। अदरवाइज सीधा आगे जा सकता था, मैं एक बार सिखाया तो आगे जा सकता हूं, लेकिन आई एक्सपेक्ट कि आपका थोड़ा सा लर्न हो जाए। There are 8 particles on the corners of 8 corners of this cube. Number 2, there is one particle which is present in the center of this cube. So it has 6 faces and 12 edges. That's all for the making. Making another 3 से 4 points sufficient. Next is nothing but you can say number of atoms present in this unit cell, BCC unit cell. तो number of atoms यहाँ पे आते कहाँ से? Corner से और bulk से, center से. Corner से 1/8 into 8, because corner का particle 1/8 contribute करता है और 8 particles से 1/8 into 8 is 1 atom. And सेंटर से 1 एटम कंप्लीट, बिकॉज दैट कंट्रीब्यूट्स इन दिस यूनिट सेल ओनली। ये जो सेंटर का एटम है वो दूसरे किसी यूनिट सेल में नहीं जाता, वो सिर्फ इसी का पार्ट होता है। ये 2 पॉइंट हो गए हमारे नंबर ऑफ एटम्स। दैट्स व्हाई बीसीसी इज मेड अप ऑफ 2 एटम्स। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज मेड अप ऑफ ओनली 1 एटम। बीसीसी इज मेड अप ऑफ 2 एटम्स। तीसरा पॉइंट कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? इट इज द नंबर ऑफ एटम्स विद व्हिच एनी पर्टिकुलर एटम इज इन कांटेक्ट विद। कोई भी पर्टिकुलर एटम कितने एटम के कांटेक्ट में है, टच में है, दैट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर। बीसीसी में consider a central atom which is in contact with other 8 particles which are present on the 8 corners of this cube, and that's why coordination number must be 8. Simple cubic में coordination number था 6, BCC में coordination number है हमारा 8. Clear with us? अभी लास्ट 4th पॉइंट बचता है जो इसी के बारे में डिस्कस करना है। क्या होगा वो? दैट इज कॉल्ड एज डेंसिटी। मतलब अगर कोई भी सॉलिड बीसीसी के फॉर्मेट में क्रिस्टलाइज होता है, कोई भी सॉलिड बीसीसी के फॉर्मेट में अगर क्रिस्टलाइज होता है तो कितना स्पेस उसके अंदर एक्वायर्ड होगा और कितना स्पेस उसके अंदर एम्प्टी होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। सो वी हैव टू फाइंड आउट 2 थिंग्स। नंबर 1 रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, ये पहली चीज, और दूसरा हाउ मच स्पेस इज एक्चुअली एक्वायर्ड बाय द पार्टिकल्स एंड हाउ मच स्पेस इज लेफ्ट एम्प्टी हियर इन दिस वन। ये हमें डिस्कस करना है, बट हम लोग मिलते हैं कल के लेक्चर में। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडेस लेक्चर। ये थोड़ा सा बड़ा डेरिवेशन है तो 10 से 15 मिनट लग सकते हैं, 15-20 मिनट भी लग सकते हैं। सो सी यू इन टुमारो लेक्चर। सो थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट। Thank you, sir.